Brothers and sisters, if I ask you, भगवान शिव का डांस फॉर्म कौन सा है? रुद्र तांडव, द डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिवास्टेशन। पर वहीं पर भगवान शिव का एक और बहुत ही मेस्मराइजिंग डांस फॉर्म है जो शायद हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। What is that dance form? How it came into being and what underlying message it is bringing for us? Brothers and sisters, let us enjoy it through this dance form in a contemporary style. Let us enjoy it. It was the time when once the Mimamsa rishis were sitting around a Havan Kund and were performing the sacred Yajna. उसी समय वहां से कोई गुजरा, कोई ऐसा जिसके समान ना था कोई और दूजा। उसके चेहरे पर दिव्यता की आभा थी, संसार के किसी भी दुख की ना कोई बाधा थी। आनंद ही आनंद था, मन में भरा परमानंद था। ब्लिस और एक्सटेसी की स्टेट का ना कहीं कोई अंत था। But who is he? Yes, he is none other than Lord Mahadev himself, passing by the Mimamsa rishis. But unfortunately, the Mimamsas could not recognize him, rather got insecure by seeing his state of ultimate bliss. Look, who is he? ये तो अपने में संपूर्ण लगता है, सुख शांति आनंद से परिपूर्ण लगता है। जो हम चाहते हैं इसकी वो चाहत नहीं। नेम, फेम, पावर, मनी, इन सब की इसमें आहट नहीं। He possesses what we do not possess. Today by heart we all have to confess. But no, if the world will see him full of happiness up to brim, then who will worship us? One day we will become powerless. नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। लोगों के देखने से पहले इसे नष्ट करना होगा। Kill him, destroy him till his last breath. By our hands, destiny has written his death. ऐसा सोचकर ऋषियों ने अपनी यज्ञ विद्या के बल पर अग्नि देव का वाहन किया। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देववृद्विजं होतारं ब्रह्मघातमम्। And there came out a roaring tiger from the fire of Yajna. ऋषियों ने देखा और पूरे बल से उसे भगवान शिव की ओर फेंक दिया। Even this could not disrupt the Anandic state of Lord Shiva. Smilingly, he held the tiger through his jaw, skinned him apart, and wrapped his skin around his loin. भगवान अब भी मुस्कुरा रहे हैं, पर ऋषि अब रोष से भर चुके हैं। एक बार फिर मंत्रोच्चारण गूंजा, हवन में सामग्री होम हुई, and there emerged a deadly, venomous, hissing snake from the fire of Yajna. The Mimamsas took the deadly snake and threw it on Mahadev. पर महादेव, उन्होंने उस फुफकारते सर्प को हाथों में लिया और इस तरह अपने कंठ में धारण किया कि उसे एक सुंदर आभूषण का रूप दे दिया। The snake sat still with upraised hood. Seeing this, the Mimamsas could not hold up their anger and now played their final shot.
अब की बार अग्नि कुंड से अपस्मारा दैत्य का वाहन किया। भयंकर हुंकार भरते हुए उसे महादेव पर छोड़ दिया। Demon with his power beyond doubt attacked Shiva with a roar aloud. Shiva, still in the state of trance, broke the back of Demon, jumped over him and started to dance. Shiva's hands and feet were in graceful coordination. His each little move was the epitome of perfection. The whole cosmos was mesmerized by his mudra. Gods, goddesses were awestruck by seeing the ecstasy of Rudra. आज प्रभु ने अपने संपूर्ण रूप का विस्तार किया। आनंद तांडव आरंभ हुआ और नटराज रूप में अवतार लिया। आनंद तांडव आरंभ हुआ और नटराज रूप में अवतार लिया। And the last pose in which Shiva froze is now world's famous as Natraj Mudra, the final posture of Shiva's Anand Tandav. Brothers and sisters, a big round of applause for such a brilliant performance. And brothers and sisters, I would like to tell you that when Rishi Bharat saw this dance form, he made a note of all that he saw. भगवान के एक एक एक्सप्रेशन को, एक एक मुद्रा को, एक एक आव भाव को, एक एक रस को उन्होंने नोट किया. And then the world got its famous Natya Shastra, the treatise on performing arts. Brothers and sisters, ये जो आपने अभी डांस फॉर्म देखा, it is metaphoric. It is throwing light on various aspects of our life as well. यहाँ भगवान शिव हमारे इंडिविजुअल सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं. And these Mimamsa rishis are actually the rishis limited to just कर्म कांडास, far away from eternal wisdom, जिन्हें ज्ञान से कुछ लेना नहीं, सिर्फ कर्म कांड तक सीमित हैं. इसलिए इस पौराणिक स्टोरी में ये अपनी ईगो को और अपने डिजायर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन एक्चुअलिटी दिस सिग्निफाई आवर माइंड. मीमांसास की ही तरह हमारा मन भी हमेशा इनसिक्योर रहता है और इसलिए कभी वो एंगर और फेरोशियस सिचुएशंस के टाइगर्स हम पर थ्रो करता है, या फिर जेलेसी या पॉइजनस सर्कमस्टेंसेस के स्नेक्स हम पर फेंकता है. एंड द डीमन जिसको आपने अभी देखा, ही इज अपस्मारा डिमन, द डिमन ऑफ इग्नोरेंस. इट डजंट अलाउ अस टू रियलाइज आवर हायर रियल सेल्फ. इसलिए भगवान शिव ने क्या किया, उस अपस्मारा डिमन को, उस अज्ञानता के दैत्य को अपने पैरों के नीचे रौंद कर कुचल दिया, खत्म कर दिया, मार दिया. और बाकी के टाइगर और स्नेक्स, इन दूषणों को आभूषणों में कन्वर्ट कर कर अपने ऊपर धारण कर लिया. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हियर लॉर्ड शिवा इज गिविंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि जब भी हमारे ऊपर भी कुछ एडवर्स सिचुएशंस भी क्यों ना हम पर अटैक करें, बट वी नीड टू नो दैट आर्ट टू कन्वर्ट आवर एवरी डिफेसमेंट इनटू एन ऑर्नामेंट, आवर एवरी डिसग्रेस इनटू अ ग्रेस, आवर एवरी वीकनेस into our greatest strength.
a Palestinian woman. Let me give you a very interesting example. There was a Palestinian woman who used to live on the borders of Palestine and Israel. पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में कॉन्टिन्यूस वॉर चल रही थी. अब इजराइल की तरफ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स हो रही थी और वहाँ से बहुत बार गैस बॉम्ब शेल्स इस लेडी के वेरेंडा में, इसके घर के आसपास आकर गिरते. The moment she saw those gas bomb shells, she used to get terrified. She said in one of her interview that these bomb shells remind me of death and I live in terror 24/7. ये बॉम्ब शेल्स मुझे मृत्यु की याद दिलाते हैं और मैं 24 घंटे दहशत का जीवन जीती हूँ. But what she did? She didn't give up. क्या किया? अपने वेरेंडा के सारे बॉम्ब शेल्स को, अपने घर के आसपास के सारे बॉम्ब शेल्स को इकट्ठा किया, उसके अंदर मिट्टी भरी and planted beautiful flowers in them and then decorated her entire house, her entire veranda with those beautiful flowers. अब उसे बॉम्ब शेल्स नहीं, फ्लावर पॉट्स दिखने लगे. उसे डेथ नहीं, ब्लॉसम्ड लाइफ दिखने लगी, खिली हुई जिंदगी दिखने लगी. एंड लेटर ऑन हर वर्ड्स वर, नाउ आई हैव लर्नड टू चेंज माई फियर्स इनटू स्माइल्स. अब मैं अपने हर दुख को, अपने हर डर को मुस्कुराहट में बदलना सीख चुकी हूँ. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज द आर्ट. वी ऑल्सो नीड टू learn to translate the worst into the best, our every weakness into our strength, the most negative into the most positive.